جی اور اس کے بعد اور دیگر کتابیں جو البرائن قاطیہ وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، تو ان کتابوں بہت زمین آسمان کا تضاد ہے، تو کن کتابوں کا مانا جائے گا؟ آپ نے کیسے تضاد محسوس کیا؟ تضاد پڑھ کے محسوس کیا. وہی نو، کن عبارات پہ آپ نے تضاد محسوس کیا؟ جیسے البرائن قاطیہ صفحہ نمبر 122 پر انہوں نے وہی مصنف رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال لے کر علم محیط کا زمین فخر عالم علیہ السلام کو نصرت قطعیہ بنا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے. فخر عالم علیہ السلام کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس کو ثابت کر کے تمام شرک کو ثابت کیا جائے، مطلب شرک کو ثابت کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت شیطان یہ جو آپ فرما رہے ہیں، آپ ان میں جو تضاد کی بات فرما رہے ہیں، جی تو چونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے نا، جی عقیدے میں عقلیات، تخیلات اور قیاسات سے بات نہیں کی جاتی ہے. بالکل نہیں. اگر عقائد کا ثبوت ہے تو متواتر اور قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت روایت اور نصوص سے ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو اگر براہین کے اندر جو عبارت بیان کی گئی ہے، اس عبارت کو اگر ہم قرآن و سنت کی میزان پہ جو ہے پیش کریں گے تو قرآن و سنت کی وہ کون سی نص ہے جو اس مضمون کے خلاف ثابت ہو جاتی ہے؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہے. ہم بھی مانتے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے نا، مانتے ہیں نا؟ ہم بھی. آپ ہم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ آپ بریلوی علماء دیوبند علماء، ہاں جی آپ بریلوی علماء سے ہیں؟ جی جی حضرت. تو آپ ہم بھی مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے دیا ہے. آپ بھی مانتے ہیں نا؟ ہاں دیکھیے، یہ عنوان جو ہے نا یہ مختصر ہے. جی مختصر ہی میں بات کر رہا ہوں، نہیں، طویل نہیں کروں گا. اگر پہلے اگر بات ہو جاتی میں آپ کا نام پوچھ لیتا تاکہ آپ کا نام لے کر ہی آپ سے بات کی جائے. کیا نام؟ میرا نام صادق علی انصاری. جی الحمدللہ. صادق صاحب، بات میں یوں عرض کروں گا کہ جن علوم کے بارے میں علماء بریلویہ، علماء دیوبندیہ اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کی جو مقدس ترین مخلوقات ہے، ان مخلوقات میں جس نو اور جس صنف کا حضور کو علم حاصل ہے، اس قسم کا علم دیگر اشرف المخلوقات کو حاصل نہیں ہے. یہ عنوان آپ کا ہے نہیں، ادھر اختلاف ہمارا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے علم دیا ہے. جی ہاں، وہ اشرف علوم. مولانا صادق صاحب، اشرف علوم کا لفظ آپ بڑھا کے رکھ لیجیے گا، اشرف علوم. ہاں. تو یہ البرائن قاطیہ کے جو مصنف ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت سے کم علم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص ثابت ہے، اور انہوں نے کوئی آیت کریمہ نہیں پیش کی، اور صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ نص ثابت ہے، یہ وسعت نص ثابت ہے. لیکن جب المحنت میں جب سوال کیا گیا تھا اس کے تعلق سے کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت سے زیادہ رکھتے ہو، تو یہاں پر تو وہ مصنف صاحب انکار کرتے ہیں کہ ایسا کہنے والا وہ کافر ہے. جو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں تمام مخلوقات سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو شخص یہ کہے کہ فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم زیادہ رکھتا ہے وہ خود کافر ہے. المحنت میں کافر کہا جا رہا ہے، لیکن البرائن قاطیہ میں. دیکھیے بات مولانا صادق صاحب، یہی بات میں عرض کروں گا. یہ جو اسلوب ہے نا مصنفین کا، یہ اسلوب ان کا اپنا خانہ زاد نہیں ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال عرض کروں گا. آپ الحمدللہ علماء ہیں، آپ سمجھیں گے. اچھا، مثلاً بہرحال کچھ صاحب تعلق تو آپ محسوس ہو رہے ہیں الحمدللہ. وہ میں یوں عرض کروں گا، کل پرسوں جو قربانی کا سلسلہ آنے والا ہے، تو اس میں آپ فقہا اور علماء کی جو تعبیرات ہے مسائل کے اعتبار سے، اس میں دو باتیں سامنے آتی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہوں گے ان کے جسم میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے. جیسے روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا کان، ہاں، تو لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بیان فرماتے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے یہاں جو عیب دار جانور ان کا کان بھی کٹا ہوتا تھا سوراخ والا، ہم اس کی بھی قربانی کر لیتے تھے. اب ایک ہی مسئلے سے متعلق دو متضاد نصوص موجود ہیں.
और दोनों की सनदें सही है, मतन सही है, रिवायत सही है, दिरायत सही है, हम उनमें से किसी का इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनकार के दर पे आ जाए कि जिसका भी हम इनकार करेंगे वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का ही इनकार होगा। इसी वजह से जब मुतज़ाद रिवायात सामने आती है तो उनमें फ़ुक़हा का एक ज़ाबिता होता है तत्बीक देना, उनका महमल और उनका अपना वो मफ़हूम बयान करना है कि जिस मफ़हूम के लिए वो रिवायत है उसका वो मफ़हूम लेना, दूसरी रिवायत का दूसरा मफ़हूम लेना। इसी तरीके से अल मुहन्नद की बात की जाए, अल बराहीन की बात की जाए, जहाँ पर इस बात को लिखा गया कि नुसूस से साबित है कि शैतान को कुछ वो उलूम हासिल हैं जो पैगंबरों को हासिल नहीं है, वहाँ उलूम से उलूम अशरफ मुराद नहीं बल्कि उलूम अर्ज़ल मुराद है, क्योंकि वो शैतान की खुसूसियत में दाखिल है पर नबूवत के लिए वो ऐब है। लेकिन जहाँ पर अल मुहन्नद की बात है कि वहाँ ये बात लिखी गई कि अगर किसी का दावा ये हो कि किसी मखलूक का नबी से बढ़कर इल्म होगा वो कुफ्र है, तो वो उलूम है उलूम आलिया और उलूम अशरफा। तमाम अहल सुन्नत का यही अक़ीदा है, शैतान को जितना भी इल्म हासिल है उसको गंदगी का इल्म तो हासिल होगा लेकिन वो उसकी ज़ात के साथ ख़ास है और गंदगी के उलूम वो नबूवत की शान के मुताबिक नहीं है। इसी वजह से दोनों रिवायात और दोनों इबारतों का महमल अलग अलग है, लिहाजा जिस पर कुफ्र बताया गया उसका महमल अलग है और जिसको साबित और मनसूस से मुअय्यद माना गया उसका महमल और मतलब अलग है। दोनों तो बिल्कुल अलग अलग बातें हो रही है। जी बोलूँ मैं? आप फरमाइए। जी जैसा कि आपने कहा है, मुझे नहीं लगता कि आप, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपने ये अल बराहीन कातिया और ये जो किताब बता रहा हूँ अल मुहन्नद पढ़ी है। आप अपने मन से बात कर रहे हैं। नहीं मन से नहीं, मन से नहीं बल्कि तौर पे लिखा है कि जो शख्स ये कहे कि फला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म ज्यादा रखता है वो काफिर है। अरे भाई यहाँ पर लफ्ज़ की बात नहीं है, सुन लीजिए, वहाँ उलूम की बात नहीं, बात इल्म की चल रही है, उलूम की बात नहीं चल रही। अल बराहीन कातिया का भी हवाला मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताब भेजने की ज़रूरत है। दोनों सवाल भी मैं पढ़ देता हूँ। सवाल क्या है कि तुम्हारी राय है कि शैतान मलून का इल्म कायनात में अलैहिस्सलाम से इल्म में ज्यादा है। इल्म की बात चल रही है और वही बात। अरे इल्म किसको कहते हैं? अच्छा पहले सादिक साहब देखिए भाई, मैंने पहले ही आपको कहा ना, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपने अक़लिया से काम नहीं लेना है। आपने अगर वहाँ पर रिवायत बात यह है कि ये नुसूस से साबित है, आप उसके ख़िलाफ़ कोई वो रिवायत कोई नस पेश करे कि जिससे साहिब बराहीन कातिया की इबारत का गलत होना साबित हो जाए। दूसरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने लंबी बात की, 1 मिनट बोलने भी नहीं दिया आप मुझे। नहीं देखिए, आपका एक मतलब वो है जो आप कर रहे हैं। नहीं मैं मतलब कुछ बयान नहीं कर रहा हूँ। उर्दू में इबारत है, उर्दू में इबारत है, समझने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सुनिए, जो इबारत में है वही मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे पास ओरिजिनल सफ़ात है, मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है। नहीं आप पढ़ लीजिए। और मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा है। अगर आप कहें तो मैं आपको फौरन ये हवाला नहीं चेक कर ले, खुद चेक कर ले। देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ। नहीं आप बेफिक्र रही, मेरे पास किताब है, आप पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं जो इबारत में है वही मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मुसल्लत करना चाहोगे कि मुझे समझ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहा और समझा भी, लोगों को समझा भी चुका हूँ। लेकिन हजरत आप जो इबारत में जो चीज़ है वो चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। आप देख लीजिए, खुद लिखा है कि हुजूर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शैतान लईन से इल्म की निस्बत आप चेक करें, टाइटल में भी है, सवाल में। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, आप दोनों जहाँ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की बात आती है, आप उस इल्म से कौन सा इल्म समझते हैं? अब कौन सा इल्म है आप बताओ, आप बताओ। आप क्या, जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम उलूम सबसे ज़्यादा दिए इल्म। अरे इस पे कौन मोतरिज़ है? मसला है कि हुजूर को किस नौइयत के उलूम हासिल हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तो कुरान में साफ फरमा दिया। वही तो मसला है ना, यही बात, यही हमने वो तमाम चीजें बता दी। यही तो है ना, इसका मतलब जो है ना सादिक साहब, आप सुन लीजिए,
यानी कि इस पर आपका और मेरा इत्तिफाक है और होना भी चाहिए कि हुजूर को जिस नवइयत के उलूम हासिल हो चुके हैं वो उलूम आला किस्म के उलूम हैं, उनमें कोई ऐब नहीं, वो कोई जो है उन चीज़ों के उलूम नहीं है जिसको हम अलियाज़ुबिल्लाह गंदगी के साथ ताबीर करें। लेकिन इसमें वो चीज बात नहीं ना है। हाँ ये बात है। अब आपका सवाल ये है, हाँ ये बात है, एक बार चेक करें, यही बात, पढ़ लीजिए इबारत। यही मसला आपका सवाल है, यही सवाल असल में आपका है कि सवाल नहीं है, मैंने इबारत अरे भाई, अरे दोनों पढ़ी है। अरे मसला ये है ना सादिक साहब, बात तो समझ लीजिए। आप कोई बात फरमाएंगे, आपकी किसी बात में किसी लफ्ज़ में इजमाल हो, आप किसी और मौके पे उस इजमाल की तफसील करें। अब मुझे आपकी इजमाल वाली बात को लेना है या तफसील वाली बात को लेना है? आप मुतकल्लिम है ना। अब यही मसला है, अल्लामा रशीद गंगोही रहमतुल्लाह की बात करें या मुहद्दिस सहारनपुरी की रहमतुल्लाह की बात करें, आप बज़्लुल मजहूद को लीजिए, शमाइल की जितनी रिवायात उन्होंने वहाँ पर ज़ेर बहस लाई है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम को जहाँ भी उन्होंने ज़ेर बहस लाया है वहाँ पर हुज़ूर को किन उलूम का हामिल करार दिया गया। अगर इस इबारत में आप इजमाल पा रहे हैं कि यहाँ पर लफ्ज़ इल्म से क्या मुराद है, आप मुसन्निफ़ की जुमला मतबूआत और उनकी तसनीफ़ात का मुताला करें। जहाँ जहाँ भी इल्म नबूवत की बहस है, फिर आप वहाँ पे देखिए उन्होंने वहाँ इल्म नबूवत से किन उलूम को मुराद लिया है। अगर वो भी इबारत पढ़ ले हजरत, कम से कम इबारत तो पढ़ ले, आप अपनी तरफ से सारे तफसीलात बयान अरे कर रहे हैं। तफसीलात नहीं, लेकिन एक बार कोई आप गैर इबारत जानिबदार, कोई कम गैर से जानिबदार, कम कोई से गैर जानिबदार हमारी गुफ्तगू को सुनेगा। उसूल हदीस का ज़ाबिता है, एक हदीस दूसरे हदीस की वजाहत बनती है, तफसीर बनती है, एक आयत दूसरे आयत की तफसीर बनती है। इसी 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 तरीके, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अल मुहन्नद में इसमें तजाद पाई जा रही है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तजाद तो तब होगा ना, अरे तजाद तो तब होगा जब महमल एक है। जब महमल अलग अलग है, दोनों मुसन्निफ़ीन ने या जुमला मुसन्निफ़ीन ने अपने मकामात पे उलूम नबूवत को जिस तफसील के साथ बयान किया, आप सिर्फ इतना दावा लिख लीजिए कि बराहीन के अंदर जो इबारत है मुसन्निफ़ ने अपनी दीगर कुतुब के अंदर भी वही मफ़हूम लिया है जो आप समझ रहे हैं। आप इस किस्म की एक इबारत पेश करें कि उस मुसन्निफ़ ने अपनी दीगर कुतुब के अंदर वही माना बयान किया है जो बरेलवी लोग इससे माना समझने की कोशिश करते हैं। हो गया, मैं बोलूं? नहीं अभी कहाँ, मैं बस आपको ये आप सुनते नहीं, आप सुनते नहीं। आप अरे भाई मुझे इल्म में मोहित समझते हैं आप? हैं? मोहित का माना समझते हैं? मोहित का माना होता है घेरा हुआ। अच्छा आप इसका इस्तिलाही एतबार से लफ्ज़ इल्म की आप पहले इस्तिलाहन वजाहत कीजिए कि लफ्ज़ इल्म किसको कहते हैं। सुनिए, रुके बता रहे हैं, बताइए। बता रहा हूँ जी ये बता रहा हूँ। इबारत ही दोनों में पढ़ दे रहा हूँ, फिर से पढ़ने दीजिए इबारत, कम से कम सुना करिए, बात को समझ में आएगा। मैं तो समझ चुका हूँ। आप ये जज्बा न रखे सादिक साहब। में साहब कहा जा रहा है कि भाई शैतान और मलकुल मौत का इल्म जमीन का फक्र आलम अलैहिस्सलाम को बिना नुस्रत कतैया साबित है, मतलब नस्त साबित है। तो आप इसको तोड़ लीजिए ना। नस्त कितने का? तो कुरान से साबित है शैतान और मलकुल मौत का इल्म नस्त कुरान से साबित है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमाया जा रहा है कि उनके लिए कौन सी नस्त साबित है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म की कौन सी नस्त साबित है जिसको साबित करके एक शिर्क साबित किया जाए? तो इबारत में साफ मौजूद है, लेकिन है ना, बातें कर रही है तो किताबें मौजूद नहीं है। अरे भाई सादिक साहब मैं कह रहा हूँ आपने इबारत मुतअद्दिद बार पढ़ी ना, आपने मुतअद्दिद बार ये इबारत पढ़ी, तो इस इबारत के खिलाफ एक आयत पेश करो ना, ये इबारत गलत है। अरे पढ़ दी मैंने आज। अरे कौन सी आयत आपने पढ़ दी? पढ़ूं मैं? फिर दोबारा पढ़ के सुनाऊं? इबारत नहीं पढ़नी, आप इस इबारत के खिलाफ एक आयत फरमाता है कि वालमा का मा लम तकुम तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैक काज़िमा। ये तो वाज़े बात जानते थे वो सब हमने आपको बता दिया। सब का मतलब ये कहाँ, ये लफ्ज़ सब किसका आपने तर्जुमा किया? सब क्या है तर्जुमा? ये किसका तर्जुमा आपने सब किया? नहीं क्या है तर्जुमा, जरा बताइए। नहीं आपने दलील पेश की ना, आपको दलील के तमाम मुतालिका तो आपको मालूम होंगे ना। अरे भाई, अरे उलवी साहब, सादिक साहब, पहले ये बात, जो आयत आप पढ़ रहे हैं ना, अरे जो आप आयत पढ़ रहे हैं ये आयत, अरे पहले सुन तो लीजिए, मैं बताऊंगा ना, आप पहले सुन लीजिए। ये जो आयत आप पढ़ रहे हैं ये किस सूरत की आयत है? नहीं आप बताए तो। अरे बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने आयत पढ़ी ना, आपने आयत, ये गालिबन सूरह निसा में मौजूद। आपको यकीन के दर्जे में आपको पता नहीं है? सूरह निसा या सूरह आल इमरान? नहीं मैं हाफिज नहीं हूं, मुझे याद तो नहीं। ये आयत जो है मक्की है या मदनी?
ये आयत मुझे ज़हन में नहीं है। ये भी नहीं पता है। जब आपको नहीं, तो क्या इस्तिदलाल और इस्तिशाद के बारे में जमीय मुतालिकात इल्म नहीं है, ये अरे पहले सुन लीजिए मौलवी साहब, सादिक साहब, मैंने आयत पेश कर दी। नहीं नहीं, अरे आयत के लिए तो शान नुज़ुल का होना ज़रूरी है, तारीख़ का होना ज़रूरी है, तभी तो। अरे भाई, आपने आयत पर एतराज़ किया कि तब का माना ठीक अरे भाई, उसमें तो क्या किया जाएगा ज़रा बताएं। सादिक साहब, मेरी बात सुन लीजिए, ठंडे दिमाग से सुन लीजिए। आपने ये दावा किया, आपने ये दावा किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम किस्म के उलूम हासिल हैं। आप नहीं मानते? अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं बाद में आप अपना नहीं मानते आप? मैं बाद में इसकी वजाहत करूंगा, आप मेरी बात। अरे जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद इसका नंबर आता है, मैं इसकी भी वजाहत कर लेता हूँ। आपके ना करने से कुछ, आपको मेरा मौक़िफ़ सुनना है, पहले ये वजाहत तमहीद सुन लीजिए, बाद में नज़रिया सुन लीजिए। वो ये है कि जब आपने आयत को बतौरी दलील के पेश किया, इस आयत से आपके ज़ाम के मुताबिक इतना तो साबित होना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमला तमाम उलूम मा काना व मा यकुन हासिल हो चुके हैं। जब आपके नज़रिए के एतबार से ये आयत इस मज़मून और मफ़हूम को साबित करती है, तो इस आयत के बाद जो जुमला दीगर आयत का नुज़ुल हुआ अलायाज़ु बिल्लाह, फिर तो आपके उसूल के एतबार से वो अबस है। जब पहले ही इस आयत पर हुज़ूर को सब हासिल हो चुका है, तो दीगर आयत का नुज़ुल क्यों कर हो सकता है? इसी वजह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस आयत का शान नुज़ुल बता लीजिए, इसका मक्की और मदनी होना वाज़े कर लीजिए, ये कब आयत नाजिल हो चुकी है और उसके बाद कितने अरसे तक नुज़ुल कुरान और वही का सिलसिला जारी होता रहा। दूसरी बात, आप मेरा मौक़िफ़ पूछ रहे कि मेरा नज़रिया क्या है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम के एतबार से। हमारे तमाम अकाबिरीन अहल सुन्नत वल जमात उलमाए अहनाफ देवबंद का ये मुत्तफ़क़ अलैह नज़रिया है, और हमारा ये मुअक्कद अक़ीदा जो है दलाइलुल क़त्इया और इसी तरीके से हर एतबार के मोतमद अलैह दलाइल से साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस हैसियत और शख्सियत की हामिल शख्सियत है, उनकी ज़ात के लिए जो उलूम शायान शान हैं, वो उलूम सिर्फ़ उन्हीं का ख़ासा है। उस नौइयत और उस सिफ़त के उलूम दीगर मखलूक़ात अशरफिया को हासिल नहीं है। जिनको हासिल है वो जुज़ई दर्जे में है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आला किस्म के उलूम हासिल हैं, मखलूक़ात उनमें कोई उनका जो है हम मिसल और इसी तरीके से शरीक नहीं हो सकता है। लेकिन बात यह है कि उलूम, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि इल्म की तारीफ़ आप पहले बता लीजिए, इल्म किसको कहते हैं, कर लीजिए वजाहत। बात मुकम्मल करें, आप बीच में आधी बात करेंगे। अरे कहाँ, लेकिन आप बात करेंगे। मैंने पहला सवाल किया, इल्म की तारीफ़ की लीजिए। नहीं, अभी आपने मुकम्मल बात की नहीं। अभी आपको तो एक बात का और हुक्म लगाना है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म का दावा करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म शैतान मलून होता है, उस पर भी हुक्म लगाना पड़ेगा ना। वो भी लगाऊंगा, पहले इल्म की तारीफ़ करो। बात करें, अभी आपने आधी बात की, करो पहले आप इल्म की तारीफ़ करो। आप पूरी बात करें पहले। अरे भाई मैं करूंगा, आपका मर्ज देखकर ही मैं। ना आप पूरी बात करें, उसमें हुक्म लगाएं, फिर बात आगे बढ़ेगी ना। आप फिर खलते मबाद करने लगेंगे। खलते मबस नहीं, उलवी तो 1 मिनट भी नहीं बोलने देते आप। सादिक साहब 6-7 मिनट आप बोलते रहते हैं। ये तो आप तो साइल बन के आए ना, आप बन के नहीं, एतराज आप मोतरिज़ बन के आए हैं। फिर सुनो, जब मोतरिज़ को एतराज़ है, अपना एतराज़ पेश करो, फिर जवाब सुनो। तो एतराज़ तो आपने कई मुतअद्दिद मरतबा दोहराया। सुनते नहीं आप। अरे मैंने सुना है, ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने इबारतें दोनों भेजी हैं, आप एक बार सिर्फ इबारत को बराए मेहरबानी पढ़ दें। मैंने तो आप मुझे यूं कह रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं ये दोनों किताबें दर्शन पढ़ा चुका हूं। आपको जिस किस्म आप पढ़ा चुके हो वो मसला अलग है, कोई नहीं देख रहा इधर ना। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों इबारतें मैंने आपको भेजी, आप सिर्फ दोनों इबारतें पढ़ दें। बिल्कुल पढ़ ली ना, सुन लीजिए आप। जब आप निशान लगाया है मैंने, आप सिर्फ इबारत, आपको निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप, ये तो आपकी परेशानी है ना। देखिए आप किसी मसले,
आप किताब पढ़ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप फंस चुके हैं किसी मसले में, ये आपकी परेशानी है। बिल्कुल नहीं फंस आप चुके, इसीलिए तो आप इबारत मैं नहीं पढ़ कैसे रहे हो। फंस और रहा पूरी हूँ? तरीके से फंस गए आप। हमारी ये ऑडियो कॉलिंग कोई भी सुनकर फैसला ले सकता है कि कौन बिल्कुल फंसा फैसला हुआ है। करेगा। यही तो है कि मैं हवाला भेज चुका, मैं पढ़ रहा हूँ। और ये अल मुहन्नस पे जो झूठा- मैंने जब भी आपने ये इबारत पहली बात झूठी किताब है, उसको तो कोई मानना नहीं ही नहीं, जब भी आपने इबारत पढ़ी है, जब भी आपने इबारत पढ़ी है, मैंने इबारत पढ़ने के फ़ौरन ही आपको ये सवाल अर्ज़ किया है कि आपको इस इबारत पे जो एतराज़ है कि ये इबारत ठीक नहीं है, ये नसूस के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा एक नसे कतई इस मज़मून के ख़िलाफ़ साबित करे। मैं क्या कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ, आप- दोनों इबारतों में दो इबारतें मेरे पास मौजूद है। एक लेकिन अभी सुने हाँ, बात को सुने। हाँ। एक अल बराइने कादिया की इबारत है, हम्म। एक अल मुहन्नस की इबारत है, जिसमें अल बराइने में शैतान और मुल्कुल मौत का इल्म, शैतान और मुल्कुल मौत का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बताया गया। और दूसरा उसी पर हुक्म लगाया गया अल मुहन्नस पे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान से ज्यादा समझे। अरे शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा समझे, वो काफिर है। बताए ना आप, वहाँ पे इल्म ज्यादा बताया जाता है, अलबराइन कातिया पे यहाँ पे हुक्म लगाया जा रहा है काफिर है। आप मैंने तो बस इबारतें आप पढ़े, आपकी बात लफाजिया करे आप मुझे लफाजी नहीं, अरे भाई लफाजी नहीं, आप पढ़ी नहीं रही इबारत। आपने 20 बार इबारत को पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ इन दो इबारात में, अरे अब सुन लीजिए एक बार मैं आपसे मुतालबा करूंगा, दोनों इबारतें आप पढ़ दें बस, मैं पढ़ चुका हूँ ना। क्योंकि आप डंडी मार रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे डंडी किस चीज की हम मार रहे हैं? डंडी तो वो मारेगा, डंडी मार रहे हैं, इसीलिए तो इबारत पढ़ लेते, मनमानी बातें कर रही है, वो लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हंसे तो ये तो आपका मिजाज बन चुका है ना, वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। आपकी पढ़ी हुई इबारत का मैं ज़रा बराबर भी मुनकिर नहीं हूँ। मैं बस आपसे इतना अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपने इन दो इबारात को खिलाफ शरअ पाया है तो वो रिवायत और वो नस सामने कर लीजिए ना, जिसके तनाजुर में आप कह रहे हैं कि ये खिलाफ शरअ है। बस वो नस पढ़ लीजिए वो नस, मसला ख़त्म। सुन लीजिए, खिलाफ शरअ तो अलग मसला है। अरे भाई पहले तो वो आयत, उस आयत की निशानदही कीजिए ना। बिल्कुल मौत से कम बताया गया, दूसरी पर उसी पर हुक्म लगाया जा रहा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप देखने पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बस लीजिए, सुन लीजिए तजाद कहाँ पे है। सुन लीजिए सादिक साहब, अब सुनने की गैरत भी कर लीजिए, सुन तो लीजिए ना। अरे कर लीजिए गैरत कर लीजिए, सुन तो लीजिए। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप सुन लीजिए, आप गैरत कीजिए, आप बुज़दिल ना बने, मेरी बात सुन लीजिए। करे गैरत, अब सुन लीजिए। अरे हजरत करने से क्या, आप सुन लीजिए, गैरत करें ना, आप सुन लीजिए। मैं आपको एक मुशफ़िक़ उस्ताद की हैसियत से आपको पढ़ाऊँगा, आप सुन लीजिए। पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, आपने इबारत मुतअद्दिद बार पढ़ी है, तो किताबें दोनों मेरे सामने मौजूद है, ऐसी बात नहीं, आप बेफिक्र रहे। दारुल किताब देवबंद का नुस्खा मेरे सामने। अरे सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आपने वक्त निकाला है, अपने वक्त की कदर करते हुए आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको इन दो जुमला इक़्तिबासात और इबारात में तज़ाद लग रहा है, तो लेकिन साथ में अभी कुछ देर पहले आपने ये बात बताई कि अल मुहन्नस झूठी किताब है। जब आपने झूठा होने का भी दावा किया तो तज़ाद कहाँ पे है? ये तज़ाद तब है कि जब आप इन दो किताबों के वजूद को तस्लीम करें। पहले आप इसको झूठा कहते हैं, फिर भी तज़ाद कहते हैं। तो दूसरी बात, अब अगर आप बसूरत मजबूरी के फ़र्ज़न किसी दर्जे में दोनों किताबों को साबित मानते हैं, फिर देवबंदियों पर यह सवाल है कि इन दो इबारात में बज़ाहिर तज़ाद है। वहाँ जिस बात को साबित माना गया, दूसरी जगह उसी बात को जो है कुफ्र माना गया। मैंने पहले ही तमहीद में आपको ये अर्ज़ किया था, जब दो इबारात में आपस में तज़ाद हो, वहाँ या तो नासिख मनसूख का मसला होगा, या राजे मरजू का मसला होगा, या तदबीक का मसला होगा। उसूल सरक्सी के अंदर ये इबारत मौजूद है। तो एक ही मुसन्निफ़ की दो
मुतज़ाद इबारात में जब दीगर कुतुब को हम सामने रखते हैं, यही बात सामने आती है कि जहाँ पर उलूम को साबित माना गया नसूस से और दीगर जगह उसी इबारत को कुफ्र माना गया, दोनों इबारात का महमल अलग अलग है। लिहाजा जब इतनी आसान सी बात कैसे पढ़ के बताते हैं आप, एक बार पढ़ के बताते हैं ना, कैसे अपने मन से बता रहे हैं आप, तो पढ़ के बता दे एक बार। अरे देवबंदी मैं हूँ, मुझे हक है ना मुसन्निफीन की जितनी आरा उन्होंने अपनी दीगर देखिए। हाँ, आप एक इबारत पेश करें इनके खिलाफ शरीयत होने की। जब वो तज़ाद की बात अब कर रहे हैं ना, दोनों का उसूल हदीस के दर्जे में आप मुतज़ाद होना साबित करें। आपकी क़ियास की बात नहीं चल रही, आप हदीस से साबित करें ये दोनों इबारतें मुतज़ाद है। करे पेश हो गया। हाँ करे पेश। पहला आपने कहा था कि ये जो अरे मैं नहीं, आप इबारत नहीं बोलने तो दिया करे ना। अरे इस वक्त बोलने देते भी नहीं भाई, इस वक्त मेरी बात नहीं है, आप किताबों की बात कर रहे हो। किताबें की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, सुनेंगे तब तो बोलूंगा ना। आप रही बात बस आप, मैंने कहा था कि अल मुहन्नद झूठी किताब है, वो आपने बताया। दलील ले लीजिए, चूंकि आप लोग उसको झूठ बोलते हैं आप लोग, इसलिए मैंने कहा मैं हवाला दे रहा हूँ कि ये किताब झूठी है। अरे आपके नजदीक भी झूठी, लेकिन अरे अहमद रजा साहब ने भी कौन से हवाले नहीं छोड़े हैं जो हवाले उन्होंने देने शुरू कर दिए। ये गलत बात है हजरत, बोलने नहीं देते। देखिए मेरे पास किताब है, मैंने हवाला आपको भेज दिया, लिखा है मसलक उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल, किताब का नाम है। देखिए क्या लिखा है सफा नंबर 46 पर। इसी जमाने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी वहाँ मौजूद थे हुज्जात मुकद्दस में। उन्होंने 28 सवालात लिखकर सहारनपुर पहले भेजे। अरे आप तो पहले एतराज पे ही कायम नहीं है, आप तो पहले अपने एतराज पे कायम नहीं है। आप पहले इन दो इबारात का मुतज़ाद होना कुरान और सुन्नत से साबित करें। साबित मैंने कर दिया। अरे कहाँ कर दिया, ये तो कोई भी सुन सकता है, तो कहाँ साबित हुआ? अरे भाई आप साबित करें ना। आप, मैं कह रहा हूँ कुरान की एक आयत से आप इनका तज़ाद साबित करें। हजरत आप बता दो कुफ्र का हुक्म कब लगता है? मैं तब वो बाद में पहले तज़ाद का दावा। इनकार करने वाला काफिर है कि नहीं? किसका? जरूरियात दीन का इनकार करने वाला काफिर है ना? अरे भाई आप मसले को मसला यही है जरूरत दीन का। अगर जो जरूरत दीन में से कोई एक चीज का भी इनकार करने, मसलन कोई नमाज का इनकार करते, जरूरियात दीन किसको कहा जाता है? का इनकार दे वो काफिर हो गया। जरूरियात दीन यहाँ पर जो कुफ्र का हुक्म लग गया, यानी कि जरूरत दीन का हुक्म लग गया, जरूरत दीन का इनकार है तो काफिर का हुक्म लग गया। तो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें साबित है मुतज़ाद। यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि एक तरह हुक्म ही लगा, यानी जरूरत दीन। अरे सादिक साहब, आप बड़ा रगड़ा मार रहे हैं कि हमें कुछ तो कुछ साबित करना है, हमें गधे को कुत्ता साबित करना है। आपकी पूरी जिंदगी, आपके बानी की भी पूरी जिंदगी इसी चीज पर रही। हम जो है मुंह को शर्म का साबित करें, शर्मगा को मुंह। आपका लहजा बिगड़ने लगा। नहीं आप बताइए जरूरत दीन का इनकार करने वाला काफिर है? मैं कह रहा हूँ कि जो बहस हमारी चली है, तरतीब के साथ जो है सवालात का सिलसिला हो जाए, दिन का इनकार करने वाला वही में आप एक तरफ शैतान मलकुल मौत का जो इल्म बताया गया कुरान से साबित है, नस्स कतई साबित है, तो उसी का तो इनकार ही काफिर है। सुन लीजिए वही लगाया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान मलकुल मौत से ज्यादा माने वो काफिर है। हो गया जरूरत दिन का इनकार तो काफिर माना जा रहा है। हो गई ना अल मुहन्नद, आपकी बात होगी, 1 मिनट तो बोलने दे कम से कम। आपकी बात होगी। रही बात अल मुहन्नद को मैंने झूठा कहा तो यूं ही नहीं कहा। 2 हवाले मैंने आपको पर्सनल पे भेजा है, आप चेक कर ले। एक का मैंने हवाला पढ़ के सुना दिया, दूसरा और पढ़ के सुना रहा हूं। किताब का नाम फिरका बातिला और उनका शरई हुक्म, लिखने वाले का नाम है मुफ्ती मियां मोहम्मद उमर फारूक साहब, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा सफा नंबर 46 पर, उधर भी 46 इधर भी 46, ठीक है ना। क्या लिखा है? मौलाना हुसैन मदनी के कब्र को अल्लाह ताला मनवर फरमाए। उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब उन्होंने देखा कि मेरे असातिज़ा पर कुफ्र का फतवा लगा और उनके अकायद पर हुस्तामुल हरमैन किताब आ गई, तो उन्होंने देवबंद में एक खत भेजा जो आपके अकायद नजरियात पर आप पर तोहमत लगाई गई थी। तो उस पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी को हुक्म दिया किताब लिखो, अल मुहन्नद अलम मुफन्नद, हिंदी तलवार हिंदी आदमी पर, यह किताब लिखी। तो ये जो आप लोग कहते हैं
अल-मुहन्नद में कि ये हरमैन के उलमा ने सवाल किए हैं, ये तो हरमैन के उलमा का सवाल ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा हुसैन अहमद मदनी के सवाल है। खत तो उन्होंने 28 सवाल लिख के भेजे, तो उनको मैं झूठा नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा बताइए? कौन सा उलमा ने सवाल किया था? सुन लीजिए, इसी बिना पर तो मैं झूठ कह रहा हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारे देखिए भाई हवाले हैं। सादिक अली साहब सुन लीजिए, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं आपके नब्ज़ को महसूस, अब सुन लीजिए, मैं लफाजी नहीं कर रहा। नहीं वो लफ्ज़ वो तो इंसान महसूस ही कर रहा है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। किताबें पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, ये लफाजी आपको समझ में आ रही है? अरे भाई सुन लीजिए, अवाम नाज जो है खुद फैसला करेगी, अवाम को बिल्कुल फैसला करेगी। सुन मैं ली- किताब पढ़ रहा हूँ, आपसे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, सुन एक भी लीजिए, इबारत नहीं पढ़ रहे आप। अब सुन लीजिए, आपने अव्वल फ़ोन कॉलिंग से सिर्फ ये बताया तजाद है, न कुरान की कोई आयत पेश कर पाए और न आपसे मुमकिन है फ़इल्लम तफ़लु वलन तफ़लु, ये आपके लिए मसला है। दूसरी बात ये मुझे तो आपके हज़रत, अरे बस सुन लीजिए, आपकी बात पे मुझे आती है, वो तो अलग मसला है, वो तो मसला है, ये तो कहा जाता है क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेल बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। आप इतना बता दीजिए, ये तो तजाद है ही नहीं, आपको नहीं दिख रहा है तो कहते अरे दिख नहीं रहा है। दूसरे पर उसी पर हुक्म लगा। आप जो स्कीन पेश कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी अक्लमंद इंसान के सामने इन दो अलग अलग इबारत को सामने रखिए। पढ़ ही नहीं सकते, अब पढ़ेंगे तो फौरन आप उसमें फंस जाएंगे। क्यों फंसना है? पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ी ना, साबित है, आपने पढ़ी ना, हाँ, जिस किस्म के ऐनक, जिस किस्म के ऐनक, मैं इबारत भेज दी, आप पढ़ने के लिए बोला, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे। जिस किस्म के ऐनक आप पहन चुके हैं, आपको सब वही दिखना है। पास दिया है, मैंने इबारत भेजी है, पढ़ी, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे। मैं तो मेरे सामने तो किताब, किस्म की इधर का आप पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। मैंने इबारत लीजिए, मैं इबारत कितनी मर्तबा नहीं पढ़ लीजिए ना, मैंने आपको भेजा है, आप एक मर्तबा पढ़ के सुनाए, मैंने 3-4 मर्तबा पढ़ के सुना चुका। पढ़ लीजिए एक मर्तबा आप पढ़ के सुनाए, आप तो इतनी देर से लफाजियां कर रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मर्तबा, ये तो कोई भी कहेगा कि तजाद किसके दिमाग में है, इबारत के आप एक मर्तबा पढ़ दे तो सारा तजाद खत्म हो जाएगा। बता लीजिए मोहन्नद का कौन सा नुस्खा आपके सामने है, बता लीजिए मोहन्नद का कौन सा नुस्खा आपके सामने। देखिए पर्सनल पर चेक करिए। नहीं मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, आप बता लीजिए ऐसे ही चेक करें ना व्हाट्सएप पे। अरे मुझे व्हाट्सएप नहीं चलाना है, आप बता लीजिए, जुबानी बता लीजिए कौन सा नुस्खा आपके पास मौजूद है। कौन सा मेरे पास नुस्खा मौजूद है? हाँ, ये मेरे पास उर्दू वाला मौजूद है, उर्दू वाला। अरे उर्दू ही तो कोई उसका तो सफ़ा नंबर होगा ना, वो छपा कहाँ से है? ये मेरे पास सफ़ा, एक मिनट रुकिए, अभी मैं बता रहा हूँ, चालू रखिए, ठीक है? बता लीजिए। हाँ रुकिए, अभी मैं बता रहा हूँ, बता लीजिए। कहाँ से? हाँ रुकिए, अभी बता रहा हूँ, ऊपर का सफ़ा पढ़ के बता दे रहा हूँ, निकाल लो जरा तो। अल-मुहन्नद बराहीन का कौन सा सफ़ा है? वो मैंने आपको भेज दिया, चेक कर लें। अरे बता लीजिए, जुबानी कहने में आपको क्या रखा? रुकिए मैं पढ़ के वो भी सुना नहीं देता हूँ। आपको आप पढ़ना मुझे है, अब आपने बार बार बताया ना पढ़ने की बात, आप मुझे पढ़े सफ़ा बता लीजिए। मैंने भेजा है, मैं वो भी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जुबानी बता लीजिए। हाँ बता रहा हूँ। बताओ। देखिए, अकायद उलमा देवबंद, मुसन्निफ का नाम हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, दारुल कुतुब देवबंद से छपी है किताब। दारुल किताब है शायद। हाँ दारुल किताब, सॉरी हाँ, दारुल किताब है, ठीक है, दारुल किताब है। और अल-बराइन कातिया का मैं अल-बराइन कातिया का बता दे रहा हूँ, ठीक है? बता लीजिए। मदबे का भी नाम नहीं आता है। देख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, आप दूसरी किताब लिखिए, कुतुब खाना इमदादिया देवबंद, अल-बराइन कातिया, जहाँ से छपी कुतुब खाना इमदादिया देवबंद। हाँ ज़रा वो सफ़ा देख लीजिए, कहाँ पे है आप कह रहे? क्या चीज़? जो इबारत अब बराहीन कातिया की पढ़ रहे हैं, हाँ, उसका जो आप 122। हाँ पढ़े उसको। अरे व्हाट्सएप पर चेक करो, ओरिजिनल किताब भेजा हूं मैं। आप असल किताब बता लीजिए, मुझे व्हाट्सएप इस वक्त जो है नहीं चल रहा है। असली मैं भेजा हूँ हजरत। अरे भाई मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल पे है, मेरा इस वक्त फ़ोन मोबाइल दूसरा है, आप वो बता लीजिए।
आपको पढ़ना ही नहीं है तो अभी कह रहे अरे भाई क्यों आप इधर उधर की बात भी कर रहे थे अभी आप। आपको क्यों ऐसी बीमारी लग चुकी है कि आप यहाँ की बात अरे नहीं सुन अभी रहे? तो आप बोले पढ़ा हो पढ़ाता हो, मैं आपको कह रहा याद हूँ भी नहीं, मैंने तो आपको व्हाट्सएप भेजा, मैं कह रहा बताइए हूँ कौन सा मैं नंबर कह चाह रहा रहे हो, हूँ बताइए मैं उसको भेजता हूँ। आपको नहीं समझ रहा। मैंने कहा कि वो मोबाइल जिस पे आपने भेजा होगा वो मोबाइल अंदर है, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं बाहर ग्राउंड में बैठा हूँ, तो मेरे सामने किताबें दोनों मौजूद है। आप बताओ कहाँ पे इबारत मौजूद है जो आप इबारत पढ़ रहे हैं? सफ़ा नंबर 122 नहीं है 122 पे है हजरत, 122 ही है, 121 121 चेक करिए। आपको तो ये भी पता नहीं कि आप क्या अरे कुछ हजरत दोनों मेरे पास एडिशन है, एक पर 121 है और एक पर 122 है। 180 और 122। 180 नहीं, 121 121, एक पर 122, दोनों इबारत मैं आपको भेज दे रहा हूँ और दोनों ओरिजिनल किताब का ही सफ़ा है। कहाँ क्या उन्वान है? बहस इल्म गैब की? नहीं, फिर वहाँ उन्वान ही नहीं है। कुछ देख लीजिए आगे पीछे, कुछ तो होगा। नहीं मैं नहीं है बहस, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अरे जब गैब का, अरे भाई हाँ वहाँ पे जो है बहुत सफ़ात पहले वहाँ पे मिलाद शरीफ का गालिबन उन्वान है, लेकिन कई सफ़ा पहले है। आपके पास असल किताब मौजूद है ना? हाँ असल मेरे पास असल है, मैंने किताब जमीन में रख के फोटो मोबाइल से खींचा हुआ है और वही किताब मेरे पास आप मौजूद ज़रा है। हाँ आप ज़रा वो उस किताब में कुछ जली उन्वान होगा ना, वो आप बता लीजिए। क्या? कोई बड़े लफ्ज़ों का उन्वान तो हो सकता है ना, जैसे उस किताब का जो है अंदाज़े तहरीर है, वो देख हाँ तो लीजिए। लेकिन वो किताब अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो खींचा हुआ मोबाइल में फोटो है, लेकिन मेरे पास अभी वो किताब रखी नहीं है मेरे पास। आप तो अभी कह रहे थे कि नीचे किताब रखा हुआ हूँ, आपकी कौन सी बात सच है? मेरा के थोड़ी घूम रहा हूँ, लाइब्रेरी में किताब है। अरे आपने अभी बताया नीचे किताब रखा हुआ हूँ। मैं मेरे मोबाइल में फोटो खींचा हूँ, कंधे पर रखो घूम नहीं ना सकता हूँ, ढेर सारी किताबें होती हैं, वो तो लाइब्रेरी में किताब है। इसका मतलब इतना झूठ बोलने में आपको क्या मजा है? हजरत मैं एक भी बात झूठ बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ मोबाइल से मैंने खींचा, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, मेरे हाथ से वीडियो बनाई है, जितनी किताबें मेरे पास थी तो इसका मतलब इस वक्त किताब नहीं है तो झूठ बोलो। सुन लीजिए मैंने तो उसकी वीडियो बनाई है। हाँ तो वीडियो में भेज दो आप, सुन लीजिए वो वीडियो बना के मैंने नेट में भी डाला है। सुन लीजिए, कोई बात नहीं, जहाँ भी डालनी है डालते रहो। सुन लीजिए। चलिए आपका शौक़ ही पूरा कर लेते हैं। बहस इल्म गैब जो मखतूता इबारत है, ये जो है ख़त कशीदा इबारत है, ये जो है रामपुरी साहब की है। उसके बाद है अक़ूलू से मौलाना अपना नज़रिया पेश करते हैं। अक़ूल अक़ीदे अहल सुन्नत का ये है कि कोई सिफ़ात हक़ ताला की बंदह में नहीं होती, और जो कुछ अपनी सिफ़ात का ज़िल किसी को अता फ़रमाते हैं उससे ज़्यादा हरगिज़ किसी में होना मुमकिन नहीं। समा व बसर इल्म व तसर्रुफ़ हक़ ताला का हकीकी है, और मखलूक का मजाजी लैसा कमिस्ली शै अलाया। फिर जिस कदर कोई इल्म व कुदरत वग़ैरह अता फ़रमा दिया, उससे ज़्यादा वो हरगिज़ ज़र्रा बराबर भी नहीं बढ़ सकता। शैतान को जिस कदर वुसअत दी, और मलकुल मौत को और आफ़ताब व महताब को जिस कदर वज़ा पर बनाया है, उससे ज़्यादा की उनको कुछ कुदरत नहीं, और ज़्यादा कोई उनसे काम नहीं निकलता, और न उस कसरत व किल्लत पर फ़ज़ल की कमी ज़्यादती मौकूफ़ है, और न उस कसरत व किल्लत पर फ़ज़ल की कोई कमी ज़्यादती मौकूफ़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से बहुत आला व अफज़ल है। क्या है? मफ़द आलम का मुकाशफ़ा उनका हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत कम था, और फिर जिस कदर हज़रत खिज़र को उससे ज़्यादा पर कादिर न थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बावजूद अफजलियत के न मिला, तो वो हज़रत खिज़र मफजूल की बराबर इस इल्म मुकाशफ़ा को पैदा न कर सके। बस आफ़ताब व महताब को जो इस हैअत वुसअत नूर पर बनाया, और मलकुल मौत और शैतान को जो ये वुसअत इल्म दी, उसका हाल मुशाहदा और नुसूस कतइया से मालूम हुआ। अब उस पर किसी अफजल को क़ियास करके उसमें भी मिसल या ज़ायद उस मफजूल से साबित करना किसी आकिल ज़ी इल्म का काम नहीं। उसमें भी मिसल या ज़ायद उस मफजूल से साबित करना किसी आकिल ज़ी इल्म का काम नहीं। अव्वल तो अकाइद के मसाइल क़ियासी नहीं कि क़ियास से साबित हो जावें, बल्कि कतई है। कतइयात नसूस से साबित होते हैं कि ख़बर वाहिद भी यहाँ मुफीद नहीं, लिहाजा उसका इस बात। अरे सुन लीजिए, मैं इबारत पढ़, मुझे ध्यान है, आप ज़्यादा तवज्जो ना फरमाएं। बस आप ऊपर से भी इबारत का जहन में रख लीजिए।
لہٰذا پورا رکھ سن رہا ہوں، لیجیے بس سن جو لیجیے سنتے ارے رہتے سن ہیں، دھیان لیجیے رکھیے گا۔ ارے سن لیجیے میں پڑھ رہا ہوں نا، سن لیجیے ہاں دھیان رکھیے گا، اب بس کیوں اتنا کہہ رہا ہوں کہ یاد ارے رکھیے بس گا، مجھے سب ذہن میں ہے، سن لیجیے بس سب سمجھتا ہوں سب سمجھتا ہوں۔ لہٰذا اس کا اس بات اس وقت قابل التفات ہو کہ مؤلف قطعیات سے اس کو ثابت کرے اور خلاف تمام امت کے ایک قیاس فاسد سے عقیدہ خلق کا اگر فاسد کیا چاہیے تو کب قابل التفات ہوگا۔ دوسرے قرآن و حدیث سے اس کے خلاف ثابت ہے، پس اس کا خلاف کس طرح مقبول ہو سکتا؟ بس یہ قول مؤلف کا مردود ہوگا۔ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم الحدیث، اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں۔ اور نہیں مجھے سب پڑھنا ہے، سن لیجیے ارے میں کیوں رکو، ارے پوری عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ اور نکاح مجلس کا مسئلہ بھی بحر الرائق وغیرہ کتب سے لکھا گیا۔ تیسرے اگر افضلیت ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلمان اگرچہ فاسق ہوں اور خود مؤلف بھی شیطان سے افضل ہیں تو مؤلف سب عوام میں بسبب افضلیت کے شیطان سے زیادہ نہیں، تو اس کی برابر تو علم غیب بذام خود ثابت کر دیوے، اور مؤلف خود اپنے ذام سے بڑا باکمال الایمان ہے تو شیطان سے ضرور افضل ہو کر عالم من الشیطان ہوگا معاذ اللہ۔ مؤلف کے ایسے جہل پر تعجب بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے کہ ایسی نالائق بات منہ سے نکالنا کس قدر دور از علم و عقل ہے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم علیہ السلام کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہونی، فخر عالم علیہ السلام کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اور خاصہ کی تعریف تہذیب منطق پڑھ کر مؤلف نے یاد کر کے بے تہذیبی عقیدہ کی اختیار کی، مگر فہم سے ماشاءاللہ ہنوز بہت دور ہیں۔ خاصہ حق تعالیٰ کے علم کا یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی حقیقی ہے جس کا لازم احاطہ کل شے کا ہے، اور تمام مخلوق کا علم مجازی ذلی کی قدر عطا کی حق تعالیٰ کی طرف سے مستفاد ہے۔ پس اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر ہو جائے کہ زیادہ، چنانچہ وجہ اس کی اوپر ذکر ہوئی اور قیاس اس کا اثبات جہل ہے کہ شائب علم کا بھی اس کا مجوز نہیں۔ الغرض یہ تحقیق واہی مؤلف کی جہل ہے، وہ آپ شاید شرک میں مبتلا نہ ہو مگر ایک عالم کا رہ مار دیا۔ بعد اس کے جو حکایات اولیاء اللہ کی مؤلف نے لکھی ہے تو اول تو یہ حکایات حجت شرعیہ مثبت حکم کی نہیں، خصوصاً باب عقائد میں، پس ان حکایات کو قبول کر کے نصوص کا رد کرنا کسی جاہل سے بھی متوقع نہیں چجائے کہ عالم سے۔ اور بات تسلیم کے جواب یہ ہے کہ ان اولیاء کو حق تعالیٰ نے کشف کر دیا کہ ان کو یہ حضور علم حاصل ہو گیا، اگر اپنے فخر علیہ السلام کو بھی لاکھ گنا اس سے زیادہ عطا فرماوے تو ممکن ہے، مگر ثبوت فعلی اس کا عطا کیا ہے کس نص سے ہے اور اس پر عقیدہ کیا جاوے اور مجلس مولود میں خطاب حاضر کیا جاوے، اس امر کا محض امکان ہے تو کام نہیں چلتا، بالفعل ہونا چاہیے اور ثبوت ہونا نص سے واجب ہے۔ مگر سوئے فہم بس نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ پورا سن لیجئے، اب سن لیجئے۔ اور مجلس مولود میں سن لیجئے اور دوسری عبارت یہاں پہ جو آپ نے پڑھی تھی کہ خود فخر عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، ما یفعل یہ مجہول کا ہے، ما یفعل ولا بکم، پتہ نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ
ताला की किताब में ये चीज मौजूद है? सुन लीजिए ये और हदीस मौजूद है और ये अरे शेख भाई अब्दुल्लाह मोहद्दिस अरे भाई देलवी रहमतुल्लाह अरे ताला भाई ने ये रिवायत की है, बात तो बताइए। सुन लीजिए सूए फहम मौलिद का काबिल शेख तमाम। अब्दुल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने रिवायत की है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, बताइए। जब आप खामोश रहेंगे ना तो सुनेंगे आप। नहीं वो उसका अरे भाई अरे जब आप खामोश रहेंगे ना तो सुनेंगे ना। दो इतराज में अरे जब आप खामोश रहेंगे ना, जब आप कुरान की आयत पढ़िए, अरे जब आप खामोश रहेंगे ना तो सुनेंगे ना आप। सुन लीजिए। हाँ तो आप दो चीज की दलील आप मुझे अरे सुन लीजिए, खामोश तो रह लीजिए ना, सुन लीजिए। बहुत बुरी तरीके से अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। आप तजलील के इरादे से मैदान में उतरे हैं, आपको जलालत के साथ ही उठकर जो है यहाँ से जाना होगा। सुन लीजिए। दलील आप कौन हो रहे हो तो पता चल रहा है। सिर्फ आप दो दलील दीजिए कि शेख अब्दुल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने की रिवायत की है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, क्या उनकी किताब में ये चीज मौजूद है? पहला। और ये सुन लीजिए पढ़ा है कि शैतान और मलकुल मौत को ये उसत न से साबित, यानी कुरान साबित है। सुन लीजिए अब जो है अरे सुन लीजिए जो इबारत। अरे कहाँ सुन रहे? जब आपको सुनने का जज्बा है तो आप सुनेंगे ना। ये अरे सुन लीजिए ना। अब आप कह रहे हैं सुन रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहे हैं। अहमद रजा की बिल्कुल खसलत पे आप उतर चुके हैं। देखिए भाई रामपुर। अरे दलील नहीं है, आप सुन लीजिए ना, फिर दलील सुनेंगे ना। हाँ सुन लीजिए। हाँ आपने 10 बार बताया, आप तो एक बार ही सुन लीजिए बस। हाँ तो मेरे को दो ये जवाब तो दो ना। ये जो अलबराहीन कातिया अला ज़िला में अनवारी सातिहा, आपने इस किताब को पढ़ा है? ये एक किताब है, 2 किताबें हैं? पढ़े हजरत, क्या लाइनी बातें कर रहे हैं कुछ ना। अरे ला यानी नहीं, जिस मसले का, जिन नुक्तों का इबारत के हल के साथ बुनियादी ताल्लुक हो, वो बातें ला यानी नहीं होती। लोग सुनेंगे तो कितना हंसेंगे। अरे हंसने की बात नहीं है। मैंने कहा कि नस्स साबित है शैतान मलकुल मौत को ये उसत। आपने पढ़ी भी इबारत, सुन। कौन सी कुरान की आयत है वो पढ़ के सुनाए, वो आयत पढ़ के सुनाए, जैसे कि आपने मुझसे मुतालबा किया था आयत का। लेकिन आप आयत नहीं पढ़ रहे कि शैतान मलकुल मौत को ये उसत नस्स साबित है। कौन सी कुरान की आयत है? पहला सुन लीजिए। देखिए भाई मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ये उन्होंने रिवायत किया है, किससे रिवायत किया? उनकी किताब में ये चीज मौजूद है। सुन लीजिए, जब आप सुनेंगे ना तो आपको जवाब मिलेगा। मसला ये है कि देखो भाई, ना आपका मकसूद मुझे जलील करना है, ना मेरा मकसूद आपको जलील करना है। हम किसी मसले को किसी तहकीक के दर्जे में लेना चाहते हैं कि इसका कोई मफ़हूम ऐसा सामने आ जाए जो काबिल इत्मीनान हो। शायद आपका भी मतलूब यही होगा, मेरा भी मकसूद और मतलूब यही होगा। हमारा शायद मकसूद नहीं कि एक दूसरे को बेइज्जत करना। अब आपने इबारत को समझा, आपका फ़हम, आपका जहन कहाँ पहुँचा है, आपने उससे नतीजा लिया है। मैंने इबारत को पढ़कर मैंने क्या जहन लिया है और क्या फ़हम मैंने हासिल किया है, मैंने समझा है। मैं जो इस किताब को पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको अर्ज़ किया, ये जो किताब है ना मौलाना जो सहारनपुरी अलैहि रहमा की, इस वक्त जो नुस्खा आपके पास और मेरे पास है, इसमें 2 किताबें मौजूद है। एक है रामपुरी की अनवार सातिहा और दूसरा है उसका जवाब अलबराहीनुल कातिया। जो अनवार सातिहा है उसकी इबारत अब देखो उसमें क्या लिखा है, क्योंकि मसला उसी से गड़बड़ चला है। अनवार सातिहा रामपुरी लिखते हैं कौन से अनवार सातिहा वाले। अब फ़िक्र करना चाहे, जब चाँद सूरज हर जगह मौजूद और हर जगह ज़मीन पर शैतान मौजूद है और मलकुल मौत हर जगह मौजूद है, तो ये सिफ़त ख़ास खुदा की कहाँ हुई? और तमाशा ये है, असहाब महफ़िल मीलाद तो ज़मीन की तमाम जगह पाक और नापाक मजालिस मज़हबी वग़ैरह में हाज़िर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते। मलकुल मौत और इब्लिस का हाज़िर होना, उससे भी ज़्यादातर मकामात पाक और नापाक, कुफ्र और गैर कुफ्र में पाया जाता है। और कि तुम्हारे इस्तिदलाल के मुवाफिक तो चाहिए ये सब मुहद्दिस और फुक़हा बबाइस एतिकाद हुजूर हर जगह मलकुल मौत और इब्लिस के बानियान महफ़िल मौलद शरीफ बनिस्बत ज़्यादातर मुशरिक ठहरेंगे। मुझे ये बता, ये इबारत किसकी है? हाँ बताए। ये इबारत अनवार सातिहा की है ना? आप मानते हैं ना? अरे ये तो अनवार सातिहा का दावा है कि वो खुद कहते हैं कि शैतान पाक और नापाक तमाम जगहों पे वो मौजूद है, इब्लीस का हर जगह पे रहना। ये तो बराहीन कातिया वाला कहता है। ये उस
अरे भाई अनवारे सातिहा की इबारत सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप सुन लीजिए। बराहीन कातिया की किताब अपनी जगह उसकी हैसियत है। अनवारे सातिहा बरेलवी आलिम का इंकिशाफ है कि मलकुल मौत जो है हर जगह मौजूद है। ये तो दावा उसका है ना? हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं, उनका दावा नहीं है। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये उनका खलील अहमद साहब का दावा है, पढ़ के सुना रहा हूँ। जो इबारत है ना, जो इसी वजह से मैंने आपको कहा ना, आपके पास कौन सा नुस्खा है अनवार का? नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या लिखा है सफा नंबर 57 पर? नहीं, शहरे आसमानी पर फिरका है रज़ाकानी सफा नंबर 57 पर क्या लिखते हैं कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब ने फरमाया कि मलकुल मौत और शैतान मरदूद हर जगह हाजिर व नाजिर हैं, और हाजिर व नाजिर होना नस्से कतई साबित है। ये किसने कहा है? हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने खुद फरमाया है। क्या लिखा, कहाँ पे? ये किताब का नाम है रजा खानी, और इस किताब की तस्दीक कम से कम 2700 उलमा ने की। 2700 उलमा देवबंद ने 2700 उलमा देवबंद ने इसकी तस्दीक की है। मैं हवाला आपको डाल रहा हूँ, चेक करिए। लिखा है कि हजरत मौलाना खलील अहमद साहब ने फरमाया कि मलकुल मौत और शैतान मरदूद का हर जगह हाजिर व नाजिर होना नस्से कतई से साबित है। ये तो वो खुद फरमा रहे। अरे यही बात, अगर इसी बात पे एतराज है, अरे भाई अगर इबारत है वो तो उनका खुद कहना है। अरे भाई सादिक साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात, आप अरे लफाजी नहीं, इसको बाद में लोग खुद फैसला करेंगे। अरे भाई 100 बात है। अल बराहीनुल कातिया 120 का हवाला आपने दिया ना। आपने इस बात को भी मान लिया कि इस किताब के अंदर 2 किताबें मौजूद है, एक रामपुरी के अनवारी साथ। लेकिन जो कॉल आपने बताया ये उनका नहीं है, ये इनका कॉल है खलील अहमद साहब का, जो कि दूसरी किताब से मैंने बता दिया है। अरे भाई पहले सुन लीजिए। ये जो मैंने इबारत पढ़ी है, आप ये कह रहे हैं कि ये इबारत अनवारे सातिहा की नहीं है? पूरी इबारत आपने ना पढ़े हैं पूरी। अरे भाई मैं 120 सफ़े की बात कर रहा हूँ। क्या ये इबारत अनवारे सातिहा हवाले की नहीं है? पूरी इबारत नहीं है। अरे आप फिक्र करना चाहिए, जब चांद सूरज हर जगह मौजूद हो और हर जगह ज़मीन पर शैतान मौजूद है और मलकुल मौत हर जगह मौजूद है, तो ये सिफत खास खुदा की कहाँ हुई? और तमाशा अरे ये कौल किसका है? ये कौल इनका है, मौलाना खलील अहमद साहब का, उनका खुद का कौल है। अरे उसके बाद जो अकूलू, ये फिर ये किताब किसकी? ये जवाब कौन किसको दे रहा है? जवाब वही तो कह रहे हैं, अकूलू जवाब दे रहे हैं, तो ये फिर उनका खुद का जवाब है ना खलील अहमद साहब। आप खुद कह रहे हैं अकूलू जवाब, यानी कि खुद खलील अहमद साहब जवाब दे रहे हैं, तो उनका अपना खुद का जवाब होगा ना। वही तो मसला है ना, सहारनपुरी का जवाब तो अकूलू से होगा ना। तो जवाब तो अपना अकीदा बयान कर रहे हैं ना। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, अकूलू से उनका जवाब है ना। ये और अकूलू से में अपना किताब दिया, बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? अरे अकूलू से पहले जो इबारत है ना, अकूलू से पहले जो खत कशीदा इबारत अनवारे सातिहा की है, उसके अंदर अनवारे सातिहा के अंदर इबारत जुरकानी के हवाले से लिखी है, अन्ना नबीना बिर्रफीक़िल आला व बिही निद्दुहु। देखिए इमाम अब्दुल बाकिर दुरकानी रहमतुल्लाह ताला के ताल्लुक उसी के नीचे उसी का तो अपना तो कोई कॉल नहीं, पहली बात, क्योंकि अरे आप तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। अरे आप मैं आपको तवज्जो दिलाने के लिए कि अनवारे सातिहा की इबारत किस मकाम पे है, मैंने ये नहीं बताया कि जुरकानी का नजरिया क्या है, वो क्या लिख रहे। उसी इबारत के नीचे अनवारे उनके हवाले से लिखे हैं। आपने कहा कि उनके हवाले इमाम अब्दुल बाकिर दुरकानी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से लिखे, आपने कहा है। अरे आपने मेरी बात मुकम्मल सुनी होती ना, आपको उसका आगे पीछे सियाक पता चलता ना। मैं कह रहा हूँ कि 120 सफ़ा पर जहाँ पर अनवारे सातिहा की इबारत लिखी है, वहाँ पर जुरकानी ने लिखा, इस इबारत से आगाज़ होता है और नीचे देखिए इसी के नीचे इबारत है। अब फिक्र करना चाहे, जब चाँद सूरज हर जगह मौजूद और हर जगह ज़मीन पर शैतान मौजूद और मलकुल मौत हर जगह मौजूद, और इसी तरीके से इब्लीस का हाजिर होना हर जगह पाक और नापाकतर तमाम मकामत पर पाया जाता है। ये इबारत जो है अनवारे सातिहा रामपुरी की इबारत है। इसी इबारत के बाद नहीं है, आप दीजिए हवाला। हैं? नहीं उनकी इबारत में ये चीज़ मौजूद नहीं, आप हवाला दीजिए पहले। सफ़ा 120 देख लीजिए। नहीं वो हमारे साथ मेरे
पास समय 120 का भी मेरे पास मौजूद है, 122 तो इबारत 120 वाली दफा मौजूद नहीं है। 120 झूठ बोल रहे हैं आप 120 अच्छा झूठ। अकूल आपने खुद पढ़ा है कि अकूल जवाब, अकूल जब कह रहे हैं जवाब दे रहे हैं तो फिर उन अनवार साथिया की इबारत कहाँ अरे में आ जाएगी? अकूल कहाँ, आपको तो मेरी बात समझ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि खत कशीदा इबारत के बाद जो है सहारनपुरी लिख रहे हैं, लेकिन जो हाँ, तो खत वही तो कशीदा मैं कह रहा हूँ इबारत कि है यहाँ ना, पे ये चीज़ मौजूद है कि हज़रत अरे मौलाना जो खलील खत अहमद कशीदा साहब ने फरमाया, इबारत, जो उनका खत तो खुद कशीदा, तो अपना मौक़िफ़ है। अरे वो अकूल से तो हम कहेंगे ना, अकूल से पहले जो इबारत में पढ़ रहा, अब फिक्र करना, यही तो अनवार वाले साथिया की इबारत है ना, वही मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ तो वही इबारत पढ़ रहा हूँ, लेकिन जवाब में जो उन्होंने कहा है कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब ने फरमाया कि मलकुल मौत और शैतान अरे भाई यही इबारत, यही ये इबारत, नस्से कतई से साबित है। अरे तो ये कौन सी दो चीजें इन्होंने झूठ बोली? पहली बात तो हर अच्छा। जगह हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से झूठ बोला, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान मलकुल मौत से ज्यादा बताया। सादिक साहब आप निकाल लीजिए किताब, निकाल लीजिए किताब, आपने जवाब नहीं दिया, आप किताब अभी तक निकाल आप आयत लीजिए, नहीं पढ़े। निकाल लीजिए, आप किताब निकाल लीजिए। किताब अभी मेरे पास नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वो आयत पढ़े जहाँ पे शैतान मलकुल मौत का इल्म ज्यादा बताया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा, और नस्से कतई से साबित है। वो आयत पढ़ के सुना, वो आपके जिम्मे है, क्योंकि ये अनवार साथिया की इबारत नहीं है, ये अल बराइन कातिया की इबारत जो मैंने पढ़ के सुनाई। असल गौर करना चाहिए, ये अल बराइन कातिया की इबारत, अनवार साथिया की इबारत नहीं है वो। मैं कह रहा हूँ कि अगर देखिए आपका और मेरा मसला शायद किस दर्जे में हल हो सकता है, आपके पास अगर किताब रहती, मैं आपको किसी इबारत का हवाला देता, आप किताब के अवलक पलट लेते, आप खुद महसूस करते कि मैं किस इबारत का हवाला दे रहा हूँ। आप मुझे किताब सामने रखकर किसी किताब का हवाला देना चाहेंगे, किताब मेरे सामने हो तो मुझे तो आपकी बात मुझे समझने में आसानी होगी, मेरी बात आपको समझने में आसानी होगी। आपके हाथ में किताब नहीं, आपके हाथ में किताब नहीं, आपके हाथ में आपके हाथ में किताब नहीं है। नहीं, मैं तो पहले कह चुका, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो असल गौर करना चाहिए, ये इबारत खुद खलील अहमद साहब की है, उन्होंने खुद कहा कि अरे गौर करना ये चाहिए कि ये आप इबारत नहीं है, ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, इसी अनवार साथिया की इबारत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अनवार साथिया की जो इबारत जो है अल बराइनुल कातिया के अंदर, वो एक डब्बे के अंदर जो है उनकी इबारत को मतन की हैसियत से लिखा गया। उसके बाद जो है अकूलू से साहिब किताब ने अपना अकीदा बयान किया है। जब क्यों कह रहा हूँ? अरे सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। इबारत ही है क्योंकि अल मुहन्नद में उसी का ही रद्द किया हुआ है। अरे सुन लीजिए ना, अकीदा रखते हो काफिर, सुन लीजिए, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनका ही अपना मैं कह रहा हूँ वो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर असल मदार है वो अनवार सातिया की इबारत है। उसी इबारत के बारे में आपको ये पहले तय करना है कि इस अल बराहीन के अंदर कौन सी इबारत अनवार सातिया की है और कौन सी इबारत बराहीन की है। सुन लीजिए, नहीं अभी नहीं, मेरी सुन लीजिए। नहीं आप करते करते आप खुद अल मुहन्नद का रद्द कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने अव्वले फ़ोन कॉलिंग में आपको बताया है कि जिस चीज़ को आप जो है इतना रगड़ा दे रहे हैं, मैंने तालिबी इल्म को समझाते हुए ये बात बताई कि दोनों इबारतों का महमल अलग है, उसके लिए रास्ते अलग अलग है, उसमें तजाद नहीं। अब जिसकी आंखों में तजाद है, चश्मे में तजाद है, फ़हम और फ़िक्र में तजाद है, वो तो कुरान में भी तजाद को जो है महसूस करेगा। तो बोलने का मौका नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप 2 नहीं 4 मिनट ले लीजिए। आप देखते हैं इस वक्त मुझे बोलने का मौका दीजिए, बोलिए। इस वक्त क्या टाइम हुआ? 12:05 हो रहा है। हाँ देखिए 12:05। मैं आपको जो है एक दरख्वास्त ही अर्ज़ करूँगा, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। तो मैं चूँकि इदारे में काम कर रहा हूँ, बहसीत उस्ताद की काम कर रहा हूँ, आपका नंबर मैंने सेव रखा है, अभी सेव तो नहीं है लेकिन सेव करूँगा। आप ऐसा काम कर लीजिए, अगर आप इस वक्त इदारे पे नहीं है, आप इदारे पहुंच लीजिएगा, आप सामने अल मुहन्नद भी रखें, किताब हार्ड कापी और अल बराहीन भी रख लीजिए। अगर हो सके अनवार सातिया की अपनी एक मुस्तकिल किताब है, वो भी आप सामने रख लीजिए। मैं भी इन जुमला 3 कुतुब को सामने रखूँगा। आप बस पहले मुझे जो है वीडियो कॉल के ज़रिए से या व्हाट्सएप पे आप उनके पहले सफ़ा डाल लीजिए कि आपका कौन कौन सा भी नुस्खा मौजूद है। हो सके अगर मुझे टेलीग्राम से भी उन नुस्खों को हासिल करना पड़े तो वो भी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों इन इबारात को ज़ेर बहस लाएंगे। आपका जो नज़रिया होगा उसको सुना जाएगा, मेरा जो नज़रिया होगा आप सुनेंगे। इस वक्त जो है 12:06 हो रहे हैं, खाने पीने का जो चूँकि टाइम हो रहा है। आप बोलने नहीं देंगे, आप नहीं आप बोलने देंगे। आप अभी आपने वादा किया था 2 मिनट बोलने देंगे। अभी तो 1 मिनट भी का मुकम्मल हुआ। हाँ, आप
करिए, लेकिन आप फोन ना काटिए, क्योंकि नहीं। आपने वादा किया बोलने दूंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, हाँ करिए, करिए, वो बात करने का मसला तब होगा ना जब बात होगी। पहले मैं नहीं, आपसे, अभी आपने वादा किया कि नहीं? वादा अरे किया सुन कि नहीं? लीजिए, जब भी वो आपको वो बोला वादा था, मैंने बोलने आपको कहा दूंगा। था, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, वो वादा मैंने तो ये नहीं बताया कि आपको अभी भी बताना है कि इतना कुछ नहीं, बताना अभी ही है, आपने घंटे बोला को था, आपको बताना बोला है। कि बोलने दूंगा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बात करें, लेकिन आप फोन ना काटें। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं इस वक्त जो है खाने के लिए जा रहा हूँ। अब खाना खाने के आप बाद बहुत नहीं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, अरे बहुत इसमें बुरी तरीके से। इसमें फंसने की बात क्या है? इस फंसने की ये बात है कि आपने किसी खुद एतराफ किया है कि अनवारे ताजिया की इबारत है, तो जो हुक्म लगाए गए बिल्कुल आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सवाल किए गए तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे खुद हैं, रद्द कर रहे हैं आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैं तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप खुद अलमोहनत को रद्द कर गए, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अपने सफाई में अलमोहनत का रद्द कर गए। अच्छा ठीक है, अगर आप ये बात फरमा रहे हैं, मैं आपसे एक बात हल्फन आपसे ले लेता हूँ। आप 3 तलाक कुल्लमा की कसम उठा लीजिए, आप कहे कि मैंने जो है ये बात बताई जो आप कह रहे हैं, बता लीजिए। फिर से बोलिए तो। जो आपने इल्ज़ाम आखिर में दिया कि मैंने इन इबारतों को झूठा बोला है, झूठा मैंने कब कहा कि झूठा बोला है? मैंने कहा कि आपने जो इस इबारत को सफाई देते हुए कहा कि अनवारे सादिया की इबारत है, आप इसको सफाई देते देते अलमोहन्नत का रद्द कर गए, क्योंकि अलमोहन्नत ये तो आप कह रहे हैं। अरे मेरा जो है उसूली जवाब तो मैंने आपको पहले ही दिया। खुद इनकार कर दिया कि ये खलील अहमद साहब का तो जो सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि खुद अपनी जबान से झूठा कर ये तो देखिए सादिक भाई, ये आप कह रहे हैं, मैंने फ़ोन के इब्तिदा में ही आपको ये बात अर्ज की। अरे भाई आप दो रट लगा कर 2-3 हो गए, ये तो रज़वियत की बात है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जिन इबारात को आपने मुतज़ाद समझा, मैंने कहा उनका महमल अलग है। जो आपने दावा किया कि इनमें तज़ाद है, मैंने आपको पहले बताया। आप मेरी बात सुन लीजिए सादिक साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तो 2 मिनट बोलने ही नहीं, आपने वो 2 मिनट के आपने 4 मिनट भी ले लिए हैं, वो जो आपको करना था, वो बात सुन लीजिए। मैंने इब्तिदा में ही आपको बताया कि आपने जो इन इबारात पर जो है तजिया निकाला है, वो तजिया वो जो आपने जो भी आपकी सुए फहमी की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, उसके खिलाफ एक आयत पढ़ लीजिए। मैंने आपको पहले बताया उसके खिलाफ एक हदीस बता लीजिए। मैंने आपको बताया उसके खिलाफ कोई एक नस्से कतई बता दीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने किसी इबारत को मुतज़ाद बताया है, उसका तज़ाद का होना आपको कुरान से साबित करना है, उसका तज़ाद का होना आपको जो है हदीस मुतवातिरा से साबित करना है, उसका तज़ाद का होना आपको इजमाई उम्मत से साबित करना है, उसका तज़ाद का होना आपको इस मुसन्निफ की जुमला मतबूआत और जो है तसनीफ़ात से साबित करना है। अगर आपको तज़ाद की ही बात है, उसका तज़ाद होना आपको कुरान और सुन्नत से साबित करना है, क्योंकि आपका फ़हम मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मेरे लिए कुरान और सुन्नत के नसूस हुज्जत है, मेरे लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़हम हुज्जत है, मेरे लिए उनकी वही हुज्जत है, मेरे लिए उनकी दलील हुज्जत है। मैं तो आपको कहने का हक़ दूंगा अपने मशरूत तरीके से, लेकिन जितने भी आपने दावे किए हैं कि तज़ाद है, कुरान से साबित नहीं कर पाए, तज़ाद है सुन्नत से साबित नहीं कर पाए, तज़ाद है सहाबा से साबित नहीं कर पाए, तज़ाद है खलील अहमद सहारनपुरी से साबित नहीं कर पाए, तज़ाद है मुहन्नद से साबित नहीं कर पाए। ये आपका दावा निरा दावा है और आपके दावे के पीछे कोई दलील नहीं है, आपके दावे के पीछे कोई मुदल्लल और कतई दलील नहीं है। जिस ज़माने में आप सादिक साहब को कोई कतई दलील फराहम हो जाए, आप उसकी निशानदही करके रख लीजिएगा, उस हदीस का हवाला आप रख के लीजिएगा। उसके बाद आप नियाज़मंद के साथ तफसीली गुफ्तगू फरमाना चाहेंगे, आप फरमाएंगे। बस जो आपका पहला सवाल है वही आखिरी सवाल है। जो आपका पहला सवाल है उसमें मैंने इब्तिदा में ही आपको जवाब दिया है और मुदल्लल जवाब दिया है और उसलूब के दर्जे में मैंने आपको जवाब दिया है। उम्मीद है कि आपने इस सवाल का जवाब तसल्ली बख्श पाया है। उसके बाद अगर अहमद रज़ा साहब की मिजाज और जिबिल्लत के एतबार से आप मजबूर है, आप मखूर है, आप उसी उसलूब में बात करना चाहेंगे, तो आपको उसका भी मौका
موقع دیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ میں نے سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تمام عبارات کو من اور ان سے پڑھا ہے، اول سے لے کر آخر تک میں نے عبارت پڑھی ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں عبارات میں انوار ساتھیہ رامپوری کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے جو گستاخی کی، آپ نے شیطان کو ہر جگہ مانا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے آپ حضور کو بھی اسی نظریے میں لے جاتے ہیں۔ یہ انوار ساتھیہ کی وہ کفریہ عبارت ہے، وہ شرکیہ عبارات ہے، وہ زندگی والی عبارت ہے، جس عبارت کو لے کر بریلوی حضرات کے سنجیدہ لوگ بھی انوار ساتھیہ والے کو وہ کافر سمجھنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بھی مانا کہ رامپوری نے یہاں پر ایک زندگیت سے کام لیا، ایک کفریہ عبارت سے کام لیا ہے۔ اللہ یہی بات ہے کہ ہم عرض کریں گے کہ اللہ آپ صادق صاحب کو اور جملہ جو بریلوی زندہ لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کی جملہ نسلوں کو ہدایت فرمائے۔ تو آپ کے فون کاٹنے سے تو مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوگا۔ صادق صاحب دیکھیں اس وقت جو ہے 1 گھنٹہ 3 منٹ 30 سیکنڈ بلکہ 31 سیکنڈ ہو رہے ہیں، آپ نے فون کاٹا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ تو وہ عبارت مکمل میرے پاس موجود ہے، میں پھر بھی آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار ساتھیہ والے کو سمجھایا کہ آپ نے الیاذ باللہ حضور کو شیطان پر قیاس کیا، یہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ شیطان ایک گری ہوئی مخلوق ہے، پیغمبر اعلیٰ قسم کی مخلوق ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کی مخلوق کو گری ہوئی مخلوق پر قیاس کرنا اصول فقہ کے اعتبار سے اور اصول علم کلام کے اعتبار سے بھی بالکل ناجائز ہے۔ پہلا کفر کا عمل جو ہے انوار ساتھیہ والے نے یہ کیا ہے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ انوار ساتھیہ والے نے یہ چاہا کہ جب شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے، پاک اور ناپاک جگہ پہ آ سکتا ہے، تو حضور ہر جگہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ یہ دوسرا ناجائز قیاس ہے کہ آپ نے حضور کو الیاذ باللہ شیطان ناپاک کے درجے میں اتارا ہے، دوسرا کفر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ صادق صاحب آپ کو جو ہے پوری قوم کے سامنے آنا چاہے اور پوری قوم کے سامنے آپ کو معذرت کرنی چاہیے کہ ہمارے مصنف رامپوری نے انوار ساتھیہ کے اندر کفر لکھا ہے، حضور کی شان کی گستاخی کی ہے۔ آپ کو اس گستاخی کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لینا چاہیے اور اس کی قبر پہ لعنت برسانی چاہے اور اس کی قبر کو جلانا چاہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سچ میں اہل سنت کے ترجمان ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، تمام پوری بریلویت و ذریت کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو حق پر رہنے اور اس پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان تبات الہدی والدین والحق۔